Welcome back to my channel Science Classes. So today I am going to teach you matter and its composition. This is a chapter from your class 7 book. Alright, so in this chapter we are going to discuss about what is a matter and the constituents of matter and what are the forces between them, that is the intermolecular forces. So let's begin. Now, what is a matter? Matter क्या होता है? Anything. It can be your book, your pen, your pencil, a glass, a cup of tea, a glass of water, bed, bed sheet, anything that you can see, anything that has a mass and occupies space. मतलब किसी भी चीज का जिसका वजन हो और वो space occupy करता है, that is a matter. It can be anything. In fact, air is also a matter because उसका mass होता है and it also occupies a space. Although we cannot see air, but still it is also a matter. There are different types of things in our surroundings such as water, soil, stones, minerals, sun, moon, stars, plants, animals, etc. All these are matters. Yes, even the heavenly bodies like sun, moon, stars, they are also a matter because they have a mass and they occupy space. We also use innumerable objects in our daily lives like books, pens, bags, shoes, clothes, car, etc. Some of them are living like plants and animals while some are non-living like water, soil, etc. Some are natural like minerals, air, water and living beings while some are man-made like books, pencil, papers, house, etc. So these are examples of man-made matters like pencil, books, papers. These are not natural but they are man-made, है ना? तो ऐसे एक question आ सकता है that example of man-made matters. So these are like books, pencil, paper, house, toys. These are all examples. And living things का क्या example? Living matter like human being, plants, animals, all such things. In fact, the food we eat, the water we drink, the air we breathe, the clothes we wear, the house we live in are all made up of matter. Okay? And this is a definition of matter. Matter is anything that has a mass, occupies a space and can be perceived by our senses. Perceived by our senses का मतलब क्या है? You know, जब हवा चलती है, ठंडी हवा, then we feel ना that yes, wind is blowing. So इसका मतलब होता है we can feel it, okay? Because air is a matter but we cannot see, but we can feel the air, alright? So air is also a matter. That means matter is not only that which we can see or touch but also which we can feel, such as air. Although we cannot see or touch air but we can feel it, especially when the wind blows. Water, sugar, alcohol, milk, gold, coal, hydrogen, oxygen, rocks are all matter because all of them have mass and occupy space. Whether it's a liquid or a solid or a gas, कुछ भी हो, जो भी ऐसा चीज़ है जिसका कोई वजन होता है या फिर और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दे आर मैटर. चाहे वो लिक्विड ही क्यों ना हो, पानी हो, मिल्क हो, एनीथिंग. It can be liquid, matter can be liquid, it can be solid and it can be gases. These are the three states of matter: solid, liquid and gases. Now, does matter of only one kind exist? No, there are different kinds of matter. मतलब क्या एक ही तरह का सिर्फ मैटर रहता है? नहीं. There are a lot of matters, varieties and types of matters. Like a shirt is made up of cloth, a book is made up of paper, a shoe is made up of leather. A single material can be used to make different objects like wood. It can be used to make bed, it can be used to make chair, it can be used to make furnitures. Alright, a paper, notebooks are made with the papers, है ना? Cardboards. उसके there are like varieties and types of matters that exist. Name two objects made up of each of the following materials. मतलब एक material से varieties of or types of matters बन सकते हैं. Now, what are the objects made with a metal? Metal का क्या हो सकता है? Jewelry, like artificial jewelry, और metal का furniture भी बनता है ना? Cloth का क्या हो सकता है? We wear cloth, our school uniform, okay? And दूसरा example क्या हो सकता है? Bed sheet. Now, leather, shoes, bags, etc. Wool का क्या बनता है? Like sweater, okay?
and again wool can be used to make like shawl or etc. Now plastic can be used to make like plastic bottles or toys, plastic carry bag. Sixth is glass. We drink water, it's a glass. Cup is a glass. Our furniture like dining table and all, windows, doors, they are all made up of glass. तो basically हम लोग जो भी चीज़ अपने सामने देखते हैं ना, it's a door, it's a window, it's a bed, it's a table, it's a chair, anything, it is all matter. जो भी space occupy किया है मतलब matter है. Matter has mass and occupies space. Alright, as I already told you, now the quantity of matter that a body contains is known as its. What does this mean? For example, ये एक body है ना? ये this is a body. अब इसमें like there it is filled up, okay, with a matter. ये एक matter है, कोई भी matter है. This is a body and this is filled with a matter. Now the quantity of matter, या फिर amount of matter is present in the body is known as mass. Okay, मतलब what is the quantity of matter, जितना भी quantity है matter का और या फिर amount of matter है उसको हम लोग बोलेंगे mass. And what is a volume? Volume क्या होता है? Space occupied. ये जितना जगह घेरा है ना, ये जो mass है, okay, ये matter जो है जितना भी ये space occupy किया है उसको हम लोग बोलेंगे volume. Space occupied by a body, ये जितना space occupy किया है, this is a volume. Now matter occupies both mass and space and can be proved with activity. चलो हम लोग देखते हैं activity. This is in your book. Take a glass tumbler, fill 1/3 of it with water, put a mark on the glass to measure the level of water. Now weigh this on a balance. See, here you can see, यहाँ पे 2 ग्लास है. ओके, पहले ग्लास में क्या किया है? पानी फिल किया है यहाँ तक, वाटर. दूसरे में क्या किया? ये मार्बल्स डाल दिया है. तो क्या हुआ है? वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट द मार्बल्स जो है ये स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, ये इतना जगह ले लिया, इसकी वजह से क्या हो गया? पानी वो ऊपर चला गया. पानी इतना था बट इसमें जो मार्बल्स डाले तो फिर पानी ऊपर चला गया. दैट मीन्स दैट मार्बल्स ऑक्यूपाई स्पेस. एंड और क्या है डेफिनेशन मैटर का? इट हैज़ अ मास. मास मतलब उसका कोई वजन होगा. तो हम लोग अगर वेट चेक करेंगे तो इसका ज़्यादा होगा. क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हम लोग इसमें मार्बल्स ऐड किए हैं. तो मार्बल्स का तो वेट है, अब मार्बल्स का वेट प्लस वाटर का वेट, तो फिर वेट तो इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैटर हैव अ मास. अगेन दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. इसमें 2 ग्लास है. दिस इज एम्प्टी और इसको हम लोग फिल कर दिए पानी से. अगर ठीक है, पानी जब ग्लास फुल हो जाता तो क्या होता है? अगर हम और पानी डालेंगे एक्स्ट्रा तो पानी जो है गिर जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर. तो इसका क्या मतलब है? मतलब पानी जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना. और उसके बाद अगर हम लोग दोनों ग्लास का वजन करेंगे तो किसका वेट ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें वाटर है, ये एम्प्टी ग्लास है, तो इसका क्या मतलब है? मैटर हैज़ अ मास. ओके, मास है, इसका मास हुआ वाटर का, क्योंकि तब जाके ये वाला ग्लास ज़्यादा भारी हुआ इससे, क्योंकि पानी का तो वजन है. तो इससे क्या पता चलता? मैटर हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. देखो ये पानी स्पेस ऑक्यूपाई किया, इट इज़ अ लिक्विड एंड इट हैज़ ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो एक्स्ट्रा वाटर था वो गिर गया, नीचे आ गया. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट मैटर हैज़ अ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस. और ये कौन सा मैटर है? इट्स अ लिक्विड, क्योंकि हमने उसमें वाटर फिल किया ना, तो वाटर इज ऑल्सो अ मैटर. ओके, नाउ इसमें था सॉलिड. मार्बल्स इज अ सॉलिड, सॉलिड का भी मैटर होता है, ये पता चल गया. इसमें लिक्विड है वाटर, उसका भी मैटर हो गया, ये प्रूव्ड. नाउ गैस, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. नाउ इसमें 2 बलून्स है और दोनों में इक्वली हम लोग हवा फिल की है ना. जब हम लोग क्या करते हैं, बलून फुलाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है. ओके, अब उसमें से अगर हम लोग एक बलून बर्स्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और जिसमें हवा है वो तो बड़ा रहेगा. तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है
एयर नहीं है तो इसका वजन कम हुआ, और इसमें हवा है तो मतलब हवा का भी तो मास होता है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा इसका वेट है, ज़्यादा वेट है इसलिए ये नीचे झुक गया और ये ऊपर चला गया, मतलब इसका वेट कम है, इसमें हवा नहीं है इसलिए वेट कम है। इसका ये मतलब है कि एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैटर एंड इट ऑल्सो हैज़ अ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। ये दोनों फूलने से बलून, वाई डज इट इट गेट इन्फ्लेटेड, बलून फूल क्यों जाता है? क्योंकि इसमें हवा भर जाता है। हवा क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दैट्स वाई एयर इज ऑल्सो अ मैटर। Now this is an important term. Mass and weight are different from each other. है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है मास और वेट के बीच में, बट यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड वेट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम लोग कोई भी चीज़ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ भी गिरे, लाइक वी थ्रो अ बॉल इट कम्स डाउन, वो ऊपर तो नहीं जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो मास है, मास क्या? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, है ना। बट वेट क्या होता है? द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज अ वेट। The mass of a body does not change but its weight changes from place to place. मास जो है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता, वो ऑलवेज एज इट इज रहता है, बट जो वेट है इट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 1/6 टाइम्स लाइटर ऑन द मून देन इट इज ऑन अर्थ, है ना। तो मून पे क्या होता है? हमारा वेट 1/6 टाइम डिक्रीज हो जाता है, लेकिन मास जो है वो हर जगह पे इक्वल रहता है। Now the composition of matter. Now what is the composition of matter? Matter is made up of atoms. Atoms क्या होता है? वो बहुत 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 छोटा पार्टिकल्स होता है, जो बहुत सारे एटम्स जो है वो मिल के बनाता है matter. Okay, so matter is made up of extremely small particles called atoms. An atom is the smallest possible unit of matter that exhibit all the properties of that matter. मतलब एटम जो है वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मैटर है, और ये सबसे छोटा पार्ट, लाइक इतना सा अगर हम पार्ट देखें तो ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? एटम से बना हुआ होता है। और एक तरह का जो एटम्स है वो मिलके एक तरह का मैटर बनाता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी मैटर का जो प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग एक एटम का निकाल के देखें तो इसका भी वही प्रॉपर्टी होगा। एटम्स यूजुअली डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। Alright, this is an important point. Atoms do not have an independent existence. Therefore, they combine with one another to form another minute particle called molecules. Okay, atom independent नहीं रह सकता अकेला, तो उसको एक पार्टनर की जरूरत है। तो एक जैसा जो एटम्स है वो मिलकर बनाएगा मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऑलराइट, तो मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स। Molecules are also very small but they can exist independently, although atoms independently नहीं रह सकता है। A molecule is the smallest unit of matter which exhibit all the properties of that kind of matter and also has an independent existence. This is also a basic difference between atom and molecule. Molecules are bigger than atoms. Obviously, अब बहुत सारे atoms मिलकर जोड़कर एक atom है, ये इतना सारा मिलकर बनाया है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल विल बी लार्जर देन एटम। कौन बड़ा होगा, एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल बड़ा होगा एटम से, क्योंकि एक तरह का जो एटम है वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाता है। मॉलिक्यूल्स आर बिगर देन एटम्स, हाउएवर बोथ द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन। बट ये लोग इतना भी बड़ा नहीं होता कि हम लोग अपने आंखों से देख सके, ऑल स्टिल ये लोग बहुत छोटा होता है एंड दे कैन ओनली बी सीन इन माइक्रोस्कोप। मॉलिक्यूल इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। Now, a molecule can be formed of atoms of the same kind or of different kinds. A molecule जो है, जैसे कि as I already told you, like atoms जो है मिलके बनाते हैं molecule, okay? ये जो एक सिंगल है atom, तो molecule जो होता है वो या तो एक तरह के atom से भी बना हुआ हो सकता है या तो फिर डिफरेंट तरह के भी। ओके, अ मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड और ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एग्जांपल, सेम काइंड देखो यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। H प्लस H मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो दोनों एक तरह का है, सेम एटम्स, है ना।
यहाँ पे नाइट्रोजन एटम्स है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किससे बना हुआ होता है, 2 नाइट्रोजन एटम से। अगेन दे आर ऑल्सो सेम काइंड, नाइट्रोजन एटम यहाँ भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये सब मिलके क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन होता है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है ना, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, यू कैन सी। तो इसमें हाइड्रोजन जो वो अलग मॉलिक्यूल है, अलग एटम है, और ऑक्सीजन जो है वो अलग एटम है। तो इसमें एग्जाम्पल है 2 अलग एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाया, एग्जाम्पल वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, ये मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। मतलब ये इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। तो एग्जाम्पल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा। और अगर पूछेगा कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म विद द सेम काइंड ऑफ एटम, तो उसका क्या एग्जाम्पल होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल दैट। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। Number 1 is particles of matter have space between them. This space is called interparticular or intermolecular space. अब for example यहाँ पे एक again फिर से कोई कंटेनर है ना, and this container is filled with, these are the particles. मान लेते ये सॉलिड है, these are solid, these are filled with so many particles. तो इन दोनों के बीच में हम लोग के जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है ना, दिस गैप आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ मैटर। देखो नंबर 1 में क्या लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो स्पेस तो दिखा, कोई भी पार्टिकल चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके बीच में स्पेस होगा। और इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हियर आई हैव रिटन ऑल्सो। सो सॉलिड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होता है ना। वही अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ऐसे लूजली पैक्ड होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा लिक्विड में। और गैस में क्या होगा, गैस में एक यहाँ है, दूसरे भाई साहब यहाँ है, फिर यहाँ है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा गैस में। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, डिप अ स्पून इन इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हम लोग जैसे 2 ग्लास पानी लिए हैं और एक स्पून डालते हैं, तो क्या होता है, वाटर लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ये जो स्पून है उसका वॉल्यूम है, एंड ये जो है मैटर है, एंड मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब इसका ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया, मतलब इसका कोई तो मास है, कोई तो वॉल्यूम है, जिसकी वजह से ये स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ऑलराइट, और यहाँ पे हम लोग क्या डाले हैं, जैसे शुगर डाले हैं, है ना। तो शुगर या फिर सॉल्ट ले लो, ग्लास में 1 स्पून वी हैव एडेड अ शुगर। ऑलराइट, लेकिन शुगर डालने से क्या, स्पून डालने से वाटर का लेवल राइज हो गया, बट यहाँ पे हम लोग शुगर डाल के मिक्स कर रहे हैं तो वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज शुगर पार्टिकल वो डिजोल्व हो गया है। शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिजोल्व हो गया है। एज आई टोल्ड यू ना कि सॉलिड से अगर वाटर मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, तो बीच में जो स्पेसेस है, इस स्पेस में क्या हो गया है, डिजोल्व हो गया है शुगर। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शुगर पार्टिकल्स जो है देर वेरी स्मॉल, और इतना छोटा है कि ये जो है दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एडजस्ट हो गया है। बट जो स्पून है इट इज बिग, ये एडजस्ट होगा, नो, इसलिए वाटर लेवल राइज हुआ है। बट शुगर पार्टिकल्स क्योंकि वो बहुत छोटा है, दैट्स व्हाई इट गॉट एडजस्टेड। You can read here. Now remove the spoon. Take half glass of water, dip a spoon in it. What do you observe? The water level rises. Now remove the spoon. Water comes back to its original level. Now add a spoon of sugar to it and stir well. The sugar disappears, but the level of water in the glass does not rise. That means the volume of water has not increased, but where did the sugar particles disappear?
See, sugar particles are adjusted between the water molecules. Upon the dissolution of sugar in water, the sugar particles, being smaller, get adjusted between the water molecules. This shows that there are intermolecular space in water. Intermolecular space पानी में है, water में है. Water is a liquid. Intermolecular space जो solid में भी होगा और gases में भी होगा, लेकिन solid में बहुत कम होगा और gases में बहुत ज़्यादा होगा, है ना. Why does the water level rise on dipping a spoon? This is because a spoon is a bigger object that cannot be dissolved and adjusted between the intermolecular space of water. Sugar जो था वो बहुत छोटा molecules था उसका, that's why वो dissolve हो गया. Spoon क्योंकि बड़ा है तो वो dissolve नहीं हो सका. Now what is second characteristics of matter? Particles of matter are always in random motion. मतलब ये लोग हमेशा motion में रहते हैं. They just go on moving from here to there. Okay, they're always in moving state. Okay, they're not stagnant. By now you know that matter is made up of minute particles which have gaps between them. But do these particles stand still in the bulk or do they keep moving? Now let's see with an activity. देखो, हम लोग अगर पानी लेते हैं, है ना, कोई भी बाउल में या फिर ग्लास में, और अगर हम लोग इसमें इंक डालें या कोई भी ऐसा कलरफुल चीज़ डालें, ओके, एनी कलर, तो क्या होता है, पूरा का पूरा पानी जो है वो कलरफुल हो जाता है ना. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन वाटर और जो इंक पार्टिकल्स है या फिर एनी कलर विच विल पुट, वो सब क्या होता है, दे आर इन मोशन. ड्यू टू मोशन द ब्लू कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ द इंक स्प्रेड ऑल ओवर एंड गिव ब्लू कलर टू दी वाटर. अब ये क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल ये है वाटर पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल है, ये है इंक मॉलिक्यूल, तो ये कंटिन्यूसली ये दोनों मूव कर रहा है. मूव करने से क्या होता है, मिक्स हो जा रहा है पूरा. तो उसके बाद क्या होगा, द वाटर विल चेंज इट्स कलर बिकॉज इट गॉट मिक्स विथ इंक, है ना. दैट्स व्हाई देयर इज अ चेंज इन कलर. ऑलराइट. Now, why does this particle move? ये particle move क्यों करता है? They move because they possess kinetic energy. Kinetic energy. Now, what is the kinetic energy? Here you can see kinetic energy is the energy that an object has due to its motion. मतलब जो body move कर रहा है, movement की वजह से इनमें energy generate होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे kinetic energy. Now जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंक्रीज होगा. इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज दे विल इंक्रीज. अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा. मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा. और काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. नंबर थर्ड, particles of matter attract each other. Now, all the particles, they all attract each other in a matter, है ना. There exists a force of attraction. अब इस force of attraction को हम लोग क्या बोलेंगे? Intermolecular force of attraction between the particles of molecules of matter which holds them together. This is known as intermolecular force of attraction. देख लो, जैसे ये सब molecules है, अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है. ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर. इंटर मतलब बीच में, मॉलिक्यूल्स मतलब सी दीज आर मॉलिक्यूल्स, तो नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ड्यू टू दिस फोर्स ऑल द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना. तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, ऑलराइट, और लिक्विड में सॉलिड से कम होगा, और गैसेज में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा बिकॉज वहाँ जो पार्टिकल्स है गैसेज में वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना. Now let's see an example. Take a wooden block, try to break it by applying a force on it. The block does not break. The block is made up of particles which do not separate easily. अब हम लोग एक लकड़ी लेते हैं छोटा सा, okay, wooden. Now that wood, if we will try to break, क्या वो टूटेगा? No, because it is made up of very hard particles, है ना, that do not break easily. But अगर हम एक piece of chalk लेते हैं and if we try to break it, वो बहुत easily break हो जाता है. क्यों? Because द चौक के अंदर जो मॉलिक्यूल है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, वो उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू वुड. तो वुड इसलिए थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू चौक.
So what does this mean? This means that there is an intermolecular force of attraction between every matter, where it's a solid, liquid, gas, या फिर वो wood हो या chalk हो, intermolecular force of attraction होता है. किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है. जैसे wood में chalk के comparison से ज़्यादा है. That's why wood is hard as compared to chalk. Now states of matter, we will do this in the next class today. Okay, so today we will end the chapter over here. We will read the remaining topics in the next class. All right. So thank you for watching. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.